Good morning, all of you. Myself, Dr. Virens. Welcome to the Spark classes. Today, we are going to start the biology lecture. So, as this is crash course, we will discuss everything which is important for your exam. So, first, in this biology lecture, today we will discuss about the biological classification. Biological classification. Biological classification. Different type of biological classification you have read. 2 kingdom classification, 3 kingdom classification, 4 kingdom classification, and recent which is used, that is 5 kingdom classification. So 5 kingdom system of classification. 5 kingdom system of classification. And this first question comes from this 5 kingdom system of classification. It is given by scientist R.H. Whittaker. R.H. Whittaker in 1969. Recent, not very old. You have seen all the scientists who are given everything in biology. There are those which are in before test or many things, many years before. But this R.H. Whittaker given this recent classification, 5 kingdom classification. According to 5 kingdom classification, R.H. Whittaker divided the living organism or living world, all the living world, the entire living world, living organism, whatever present around us, the living world is divided into total 5 kingdom. So there are 5 kingdom in the living world. First, number 1 is Monera. Second is Protista. Third, Fungi. Next is Plantae and Animalia. Last is Animalia. तो these are the 5 kingdom. ये kingdom मत समझना कि ये area clear. जो राजा थे उनका kingdom नहीं. The living world, the living organism, entire living organism are divided into 5 kingdom. First is Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. First, these kingdom are divided on the basis of some features, some characteristics. So first come to number 1, Monera. What is the characteristic of kingdom Monera? The Monera include all unicellular organism. Unicellular. What is the meaning of unicellular? Unicellular means that body consists of only one cell. Unicellular and prokaryotic organism. Unicellular, prokaryotic. This is the basic feature. First thing you have to remember, because directly question comes. The kingdom Monera consists of which type of cell? Unicellular, prokaryotic. ये prokaryotic के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा. What is prokaryotic? Now come to the Protista. This Protista consists of all unicellular eukaryotic organism. Unicellular eukaryotic. So main difference between Monera and Protista, every time this question comes in it, the unicellular made of one cell, prokaryotic cells found in kingdom Monera, but unicellular eukaryotic, these are found in the Protista. Similarly, rest 3 kingdom, Fungi, Plantae and Animalia, these are multicellular. These are different from the first two, multicellular. These 3 kingdom are multicellular and all are eukaryotic. These things you have to remember. So from this 5 kingdom classification, first question comes this name of the scientist and sometimes the year. And the second question which comes, the living world which is divided into 5 kingdom. Out of 5 kingdom, how many are unicellular? How many kingdom are unicellular? You can see directly here the number of unicellular kingdom. How many unicellular kingdom are there? Number of unicellular kingdom are 2. First 2 means Monera and Protista. Similarly, number of multicellular kingdom are rest 3. That is Fungi, Plantae, Animalia. And sometimes question comes number of prokaryotic kingdom. Number of prokaryotic. How many kingdom are prokaryotic? You can see in the here. Out of this 5 kingdom, only prokaryotic word is written here. So Monera are only prokaryotic. So only one kingdom is prokaryotic. Sometimes question comes according to R.H. Whittaker's classification. How many kingdom out of 5 contain prokaryotic cell? Only 1. Similarly, how many contain eukaryotic kingdom? That is 4. Total is 5. So this question you have to remember. But detail is not required here, but first we will discuss about this Monera.
In Monera, first characteristic, the kingdom Monera consists of all the unicellular prokaryotic cell. What is the meaning of unicellular prokaryotic cell? In this unicellular prokaryotic cell, if you compare with the eukaryotic cell, only this kingdom consists of prokaryotic. First come to the main difference between prokaryotic cell. What is a prokaryotic cell? Prokaryotic cell, and what is the eukaryotic cell? Eukaryotic cell. Eukaryotic. So now tell me, out of the 5 kingdom, only Monera kingdom are prokaryotic. What are the eukaryotic? Eukaryotic 4 kingdom. First is Protista. Second is Fungi. Third is Plantae, and last is Animalia. तो अभी एक एग्जांपल लेके देखेंगे. What is eukaryotic cell? Now take one example out of this 4. Take a plant cell. So plant, all plants are eukaryotic, all animals are eukaryotic, all fungi are eukaryotic, and all protista are also eukaryotic. Now take an example of plant cell. अभी थोड़ा plant cell के बारे में देखेंगे. Compare करेंगे with prokaryotic cell. Eukaryotic cell with prokaryotic cell. Now take a plant cell. If you take example of plant cell, all of you know from the lower classes what a plant cell consists of. All the plant cells covered by non-living covering. All the plant cells, if you look at the structure of a plant cell, all the plant cells covered by non-living covering. Non-living. The outermost covering is non-living, and this non-living covering is known as a cell wall. This one is known as a cell wall. Non-living covering is known as a cell wall. And just below the cell wall, just below, there is a living covering. This is known as a cell membrane or plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane. And inside, out of this covering, in addition to this two covering, after completion of this covering, if you enter inside the plant cell, at the center, almost at center, there is a sphere. There is a sphere, ball-like structure, and the sphere is known as a nucleus. The sphere-like structure is known as a nucleus. And similarly, the nucleus is also covered by a covering. जैसे cell को cover करके दो cover है. Cell is covered by two covering, cell wall and cell membrane. Similarly, this sphere is also covered by two covering. And this covering of the nucleus, ये sphere का नाम है nucleus. And this covering of nucleus is known as a nuclear membrane. This is called as a nuclear membrane. Nuclear membrane. Nuclear membrane. And inside the nuclear membrane, or inside the sphere, if you enter inside this sphere, inside this nucleus, there is a fluid-like substance. Fluid means semi-fluid substance, not complete solid or not complete liquid. And this gel-like substance, semi-fluid substance, which is not complete solid or not complete liquid, that semi-fluid-like substance is known as a nucleoplasm. क्या बोलेंगे? Nucleoplasm. तो nucleoplasm is a gel-like substance. It is a gel-like substance, not complete solid or not complete liquid. And in this nucleoplasm, two things are floating. Two things are present in the nucleoplasm. In this nucleoplasm, some threads are present. Threads. They rope-like structures. Long and coiled threads. These are not straight. Long and coiled threads are present. And these threads are known as a chromatin. ये thread को क्या बोलते हैं? Chromatin. These threads are known as a chromatin. And these chromatin are made of DNA. Similarly, in addition to chromatin, some small ball-like structures, small spheres are present, and these small spheres are known as a nucleolus. Not nucleus, nucleolus. तो ये चारों चीज देखने को मिलेगा अगर एक यूकैरियोटिक सेल को हम देखेंगे. In eukaryotic cell, first you find in the nucleus this sphere which is present inside the cell. This sphere contains four things. These four things are present, and these four things you have to remember: nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin, nucleus. तो एक न्यूक्लियस बनाने के लिए, to form a nucleus is made of four parts, and this type of nucleus which contain these four parts, this type of nucleus is known as a true nucleus or advanced nucleus. तो इसको true nucleus बोलेंगे, true nucleus. तो ट्रू न्यूक्लियस एक चीज आ जाता है यहाँ पर, तुमको याद रखना पड़ेगा ट्रू न्यूक्लियस, बिकॉज मैक्सिमम टाइम दिस क्वेश्चन कम्स. व्हाट इज ए ट्रू न्यूक्लियस? ट्रू और एडवांस्ड न्यूक्लियस. एडवांस्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू और एडवांस्ड न्यूक्लियस? ट्रू और एडवांस्ड न्यूक्लियस इज दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस व्हिच कंटेन these four parts, and out of these four parts most important is nuclear membrane and
and nucleolus. Nuclear membrane means covering of the nucleus, covering of the nucleus होना चाहिए। और ये जो छोटा छोटा बॉल दिखा है nucleolus, nucleolus can be maybe one or maybe more than one से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों अगर है, ये दोनों अगर है, ये न्यूक्लियस को बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस और एडवांस न्यूक्लियस, और समटाइम इट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस फाउंड इन व्हिच ऑर्गेनिज्म, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस फाउंड इन व्हिच ऑर्गेनिज्म। आंसर में ओनली प्लांट नहीं होगा, ये यूकैरियोटिक किंगडम जितने हैं, जितने यूकैरियोटिक किंगडम है, यूकैरियोटिक किंगडम मींस स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांट एंड एनिमलिया, all the four contain well defined nucleus or well organized nucleus or advanced nucleus, true nucleus। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम यहाँ पर याद रखो चार किंगडम प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांट एंड एनिमलिया, जिसके पास ऐसा न्यूक्लियस होगा। अगर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर लॉस है, उनको बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस और एडवांस न्यूक्लियस और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई दिस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक? ये यूकैरियोटिक नाम क्यों आया? यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यू मींस ट्रू, यहाँ पर दोनों वर्ड है यूकैरियोटिक, दिस इज कॉम्बिनेशन, यूकैरियोटिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, नंबर वन इज यू, ये यू ग्रीक वर्ड का मतलब है ट्रू और एडवांस, ट्रू और एडवांस, ट्रू और एडवांस, एंड और एक वर्ड है कैरियर, कैरियर का मतलब है न्यूक्लियस, कैरियर का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। तो ये दोनों को जब हम मिला लेंगे यू प्लस कैरियर, ये हो जाएगा ट्रू न्यूक्लियस। तो जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा और एडवांस न्यूक्लियस होगा, उनको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। लेकिन प्रोकैरियोटिक के पास, जो प्रोकैरियोटिक किंगडम लिखा था, प्रोकैरियोटिक किंगडम कौन था? मोनेरा। प्रोकैरियोटिक किंगडम में जो मोनेरा था, ये मोनेरा के पास ट्रू न्यूक्लियस और एडवांस न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल में और मोनेरा किंगडम में ये न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर लॉस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर लॉस भी नहीं होता है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में हमको एडवांस न्यूक्लियस नहीं मिलेगा और ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या मिलेगा? ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन ट्रू न्यूक्लियस के जगह इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यू फाइंड ए फॉल्स न्यूक्लियस, ए फॉल्स न्यूक्लियस इज फाउंड, फॉल्स न्यूक्लियस, and that false nucleus is also known as nucleoid or genophore, nucleoid or genophore. This is the main or basic difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में मिलेगा, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं मिलेगा। सेकंड डिफरेंस क्या है? ये तो न्यूक्लियस का पोर्शन खत्म हो गया। अगर न्यूक्लियस को बाहर चले जाएं, न्यूक्लियस के बाहर चले जाएं, ये न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो स्पेस, ये वाला स्पेस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जो गैप है, this gap is not empty, this gap is also filled by some fluids, gel like, not complete fluid, not complete liquid, there is a gel like substance just like inside the nucleus। जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियर प्लाज्म। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? in this gap, in this space there is another fluid like substance, semi fluid like substance, which is known as the cytoplasmic matrix, cytoplasmic, इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लांट सेल के अंदर, प्लांट नहीं, all the eukaryotic cell you will get two fluid gel like substance inside the nucleus. The gel like substance is called nucleoplasm, outside the nucleus the gel like substance is known as the cytoplasmic matrix। now question comes, inside the nucleus, ये न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस था न्यूक्लियोप्लाज्म, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज फ्लोट कर रहे होंगे, दो चीज वहां पर है, वो फ्लूइड के ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को आ जाए, अभी क्वेश्चन आता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स तो फ्लूइड है, वहां पर कुछ फ्लोट कर रहे हैं या दिस इज एम्प्टी? नॉट, दिस इज नॉट एम्प्टी। तो दिस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ सम फ्लोटिंग सब्सटेंसेस, कुछ चीज यहाँ पर भी फ्लोट कर रही है। क्या क्या? एक एग्जांपल ले जाएंगे, जैसे नंबर 1
is mitochondria. Number 1 is mitochondria. This is mitochondria. This is one organelle, mitochondria. Similarly, another organelle you can take. This is plastid. This is plastid. Mitochondria. This is plastid. Similarly, another you can take Golgi complex. This is Golgi complex. This is lysosome. This is endoplasmic reticulum. You find many floating structures. ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत सारे फ्लोटिंग चीज है, फ्लोटिंग बहुत सारे फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है। ये वाला जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ए है जो लाइसोसोम, ए है प्लास्टिड, ए है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे फ्लोटिंग चीज है। और ये फ्लोटिंग चीज को क्या बोलते हैं? दीज आर टुगेदर कॉल्ड एज ऑर्गेनेल्स। इनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेल्स। तो न्यूक्लियस के बाहर हमको दो चीज मिला। न्यूक्लियस के बाहर हमको दो चीज मिला। एक है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, द फ्लूइड सब्सटेंस, एंड ऑर्गेनेल्स आर फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और ऑर्गेनेल दोनों को मिला के बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो अभी अगर देखें एक प्लांट सेल को, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में हमको चारों चीज याद रखना होगा। दो कवर, number 1 is cell wall, second is cell membrane, and two fluid containing portions. One is nucleus, another is cytoplasm. A cytoplasm is the mixture of cytoplasm matrix and organelle, and a nucleus consists of these four things. And this, out of these four things, the nuclear membrane and nucleus are the actual portions which make them true nucleus. But this is not found in case of kingdom Monera or prokaryotic cell. तो फर्स्ट डिफरेंस तो आ गया न्यूक्लियस में। सेकंड डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक के बीच? सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अगर साइटोप्लाज्म को देखेंगे, साइटोप्लाज्म में अभी क्या बताया? एक साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स है जो फ्लूइड है, और वो फ्लूइड के अंदर क्या फ्लोट कर रहे हैं? ऑर्गेनेल। ये ऑर्गेनेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ऑर्गेनेल्स आर टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑर्गेनेल? ऑर्गेनेल्स आर टू टाइप्स। एक है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और एक है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड, नंबर 1 इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड। नंबर 1 इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सेकंड इज मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल means those organelles which are covered by membrane, but membrane less organelle which are having no covering. Those organelles which are not covered by any membrane, these are called as membraneless. ये दोनों ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो यूकैरियोटिक सेल contain both membrane bound and membraneless organelle. But if you come to prokaryotic cell, in prokaryotic cell there is absence of membrane bound organelle. Absence of membrane bound organelle. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहां पर नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन-कौन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कितना नंबर का है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल कितना नंबर का है। यहां पर ओनली याद रखो प्रोकैरियोटिक सेल lack the membrane bound organelle. There is absence of membrane bound organelle. Only some membraneless organelles are present here in case of prokaryotic cell. तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मींस ये दोनों डिफरेंस मस्ट यू हैव टू रिमेंबर। तो फर्स्ट ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो अभी थोड़ा कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे। हमारा तो यूकैरियोटिक सेल चार का एग्जांपल हम ले लिए, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमलिया। अभी थोड़ा देखेंगे ये जो मोनेरा किंगडम, ये मोनेरा किंगडम में कौन-कौन आते हैं? Which organisms are coming under this kingdom Monera? ये kingdom Monera में mainly बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया। क्या-क्या? बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म। अगर ये kingdom Monera को देखें, kingdom Monera में क्या-क्या आएगा? Which organisms are coming under this kingdom Monera? Number 1 is known as mycoplasma. mycoplasma ये सब याद रखना होगा। ये जो ऑर्गेनिज्म का नाम अभी लिखूंगा ये सब याद रखना होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए। Number 1 is mycoplasma, also called as PPLO. Pleuropneumonia like organism. Second is known as BGA, blue green algae. Second is known as blue green algae. Blue green algae, also known as BGA, shortly written as BGA.
इसको कभी-कभी सियानोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। सियानो अदर नेम इज सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया ये एक बार क्वेश्चन आया था नीट में, तो इसका नाम भी याद रखना होगा। ब्लू ग्रीन algae आर आल्सो नोन एज सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae और सियानोबैक्टीरिया। थर्ड में क्या आएगा? नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया से सियानो को हटा देना। सियानो को हटा देने से क्या होगा? ओनली बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन algae, सियानोबैक्टीरिया, देन बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज एक्टिनोमाइसेटिस। एक्टिनोमाइसेटिस जैसे बैक्टीरिया है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक्टिनोमाइसेटिस के बाद और एक आएगा। एक्टिनोमाइसेटिस क्या हमारा है? माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन algae, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेटिस। अनदर इज रिकेट्सिया ऑर्गेनिज्म। तो ये सब ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे प्रोकैरियोटिक में। कभी-कभी क्या आ जाता है क्वेश्चन, ऐसे आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? ऑप्शन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का नाम दिया होगा, पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। और कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैक ए ट्रू न्यूक्लियस। किसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा? यहां पर तो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। तो ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, पूछेगा ट्रू न्यूक्लियस इज ऑप्शन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यहां से किसी का एक नाम दे देगा। तो ये सबको याद रखना पड़ेगा। माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन algae, सियानोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेटिस, रिकेट्सिया। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है जो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तुमको ये सब नाम एक बार पढ़ना होगा। एक बार ये सब नाम याद रखने के बाद एक छोटा सा फार्मूला है जो जहां से तुमको क्या ये सब नाम रिकॉल हो जाएगा इजीली। क्या फार्मूला है? माय बीजी एक्टर बैक इन रॉकेट। ये छोटा सा फार्मूला तुमको याद रखना होगा। माय बीजी एक्टर, माय से क्या होगा? माइकोप्लाज्मा, बीजी से आएगा ब्लू ग्रीन algae और सियानोबैक्टीरिया, एक्टर से आएगा एक्टिनोमाइसेटिस। तो माय बीजी एक्टर एक्टिनोमाइसेटिस कैसे बैक किया? बैक इन रॉकेट। अरे एक्टर है तो जल्दी आना पड़ेगा ना। बैक इन रॉकेट, बैक से बैक्टीरिया, रॉकेट से रिकेट्सिया। क्लियर हुआ? ऐसे बहुत सारे फार्मूला बताऊंगा। जितना लेक्चर तुम्हारा होगा उतना फार्मूला बताऊंगा, एंड इन एवरी फार्मूला यू विल गेट one question in NEET. Clear? So these organisms belongs to kingdom monera. ये सब किंगडम मोनेरा में आएंगे। जितना ऑर्गेनिज्म अभी बताया ये सब का नाम याद रखना होगा। अभी थोड़ा क्या डिस्कस करेंगे? नाम के बाद थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक और किंगडम मोनेरा का स्ट्रक्चर कैसा आएगा अगर देखेंगे। फर्स्ट टेक वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दिस किंगडम। तो किंगडम मोनेरा का तो नाम याद हो गया, जितने ऑर्गेनिज्म थे। फर्स्ट क्या था? माइकोप्लाज्मा। सेकंड क्या था? सियानोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae, बीजी। देन एक्टिनोमाइसेटिस, एक्टर, बैक्टीरिया। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक में जो किंगडम मोनेरा है, तो मोनेरा किंगडम का सबसे ज्यादा जो दिखाई देते हैं वो है बैक्टीरिया, मोस्ट अबंडेंट। लेकिन अगर एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बैक्टीरिया, इफ यू कंपेयर विद द प्लांट सेल, now the plant cell is present, now we will compare with the bacteria. Take a bacterial cell. If you take a bacteria, what is the difference between plant cell and bacteria? Just like plant cell covered by two covering, plant cell का दो कवर था, याद है क्या? सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। Similarly, in case of bacteria, you find three covering. There is one extra covering. One extra covering you find in case of bacterial cell. तो एक्स्ट्रा कवरिंग क्या होगा? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के और एक एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो तीन कवरिंग हमको मिलेगा बैक्टीरिया में। The first, the outermost covering is known as a glycocalyx. इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे और एक कवरिंग मिलेगा जिसको बोलेंगे सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे और एक कवर मिलेगा जिसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन।
तो पहला डिफरेंस प्लांट और बैक्टीरियल सेल में डिफरेंस क्या हो गया? प्लांट और बैक्टीरियल सेल को कंपेयर करेंगे तो प्लांट के पास ये दोनों ही कवर था ओनली, क्या? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? ग्लाइकोकैलिक्स आ गया, ग्लाइकोकैलिक्स। एंड दीस थ्री कवरिंग्स आर टुगेदर कॉल्ड एज सेल एनवेलप। ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप, सेल एनवेलप, सेल एनवेलप। एनवेलप मींस कवर, सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप consists of three coverings, glycocalyx, outermost, middle is cell wall and inner is cell membrane. ये तीनों का together these three structures are called as cell envelope and उसका function क्या होता है? main function of cell envelope together all the three covering provide protection। तो कवर का तो फंक्शन ही प्रोटेक्शन है ना, तो मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। लेकिन ये तीनों का सेपरेट फंक्शन भी कुछ होता है। ग्लाइकोकैलिक्स का कुछ स्पेशल फंक्शन होता है जो सेल वॉल का नहीं, सेल वॉल का भी कुछ स्पेशल फंक्शन होता है जो सेल मेम्ब्रेन के पास है। तो वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कम टू ग्लाइकोकैलिक्स। इफ यू कम टू द ग्लाइकोकैलिक्स, फर्स्ट आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड ऑफ डिफरेंट केमिकल्स and this glycocalyx are two types. Glycocalyx are of two types. Sometimes glycocalyx is loose sheath like, loose sheath, sheath means cover, loose sheath. Sometimes it is very loose and sometimes glycocalyx is very thick, thick and tough, thick and tough. ये डिफरेंस क्यों आता है? लूज। जैसे कंपेयर कर सकते हो, इन केस ऑफ ओल्ड एज, इन केस ऑफ ह्यूमन द स्किन इज वेरी लूज। In case of old people, you can find their skin is very loose. You can withdraw their skin from their body. But in young age, the skin is very tight, thick or tough. And this loose and thick character of glycocalyx. ये जो glycocalyx outermost cover है, cell envelope का outermost covering, ये glycocalyx का जो दो नेचर आता है, loose sheath और thick and tough, that is due to chemical. ये जो loose sheath, this loose sheath is mainly made of some sugars. एक किसमें बना है? सुगार। क्या क्या सुगार? एक है डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रान और एक है डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन और लाभान, लाभान सुगार, लाभान सुगार। लेकिन ये सब सुगार का नाम याद रखने का जरूरत नहीं, ओनली मैं लिख दिया टू इंडिकेट देयर डिफरेंस। लेकिन जब थिक एंड टफ होगा, जब ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ हो जाएगा, उस टाइप में तुमको ओनली सुगार नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा? कुछ पॉलीपेप्टाइड मिलेंगे, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मींस प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मींस कार्बोहाइड्रेट और शुगर को मिला के जो लंबा सा चेन हो जाता है। तो पॉलीसैकेराइड, पॉली मींस मेनी, मेनी शुगर्स, देयर पॉलीपेप्टाइड, मेनी अमीनो एसिड्स। तो दिस इज द केमिकल डिफरेंस, केमिकल कंस्टिट्यूएंट लूज, थिक एंड टफ। इसलिए क्या हो जाता है? ड्यू टू दिस केमिकल इट इज लूज, ड्यू टू दिस केमिकल इट इज थिक एंड टफ। लेकिन उनका एक नाम है। जब एक ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट जैसा हो जाएगा, उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। ये याद रखना होगा, स्लाइम लेयर। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। When glycocalyx is loose like, it is called slime layer, and when glycocalyx is thick and tough, it is called as capsule. तो हर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल नहीं मिलेगा कि स्लाइम लेयर, बोथ नहीं मिलेगा। अगर स्लाइम लेयर है, कैप्सूल नहीं मिलेगा, अगर कैप्सूल है तो स्लाइम लेयर नहीं मिलेगा। तो स्लाइम लेयर आर लूज and capsule are thick and tough. Another next important question which comes is their function. What is the function? What is the function of these two layers? First, number one is slime layer. Slime layer prevent desiccation. Prevent desiccation. Desiccation क्या होता है? Loss of water. Desiccation means loss of water. Loss of water. जैसे हमारा गर्मी के टाइम क्या होता है? पसीना छूट जाता है। ज्यादा पसीना छूट जाएगा तो क्या होगा? Due to loss of water, dehydration will be takes place and cell will start dying. Similarly, बैक्टीरिया में ऐसा होता है। बैक्टीरिया में डेसिकेशन को हम बोल सकते हैं कि उनका भी पसीना छूट जाता है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर देयर बॉडी वाटर, जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जितने वाटर होता है वो वाटर, उसका अंदर का वाटर लॉस हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। लेकिन ये जो ग्लाइकोकैलिक्स कवरिंग है, ये ग्लाइकोकैलिक्स वाटर को, अंदर का वाटर को बाहर नहीं जाने देगा। तो इट प्रिवेंट डेसिकेशन एंड इट प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। और एक चीज को प्रिवेंट करेगा, किसको बंद करेगा? डेसिकेशन को प्रिवेंट किया। सेकंड,
इट प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है, जितने भी विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोटीन रिच, जैसे कि स्पिरुलिना, बताऊंगा बाद में, स्पिरुलिना इज रिच इन प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन में यूज किया जाता है, मिथाइलोबिनस, मिथाइलोप्रोपस, ये सब चीज बाहर नहीं आएगा, तो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट को प्रिवेंट करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन तुमको याद रखना पड़ेगा स्लाइम लेयर के बारे में। लेकिन कैप्सूल का फंक्शन क्या है? कैप्सूल नंबर 1 फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज फ्रीक्वेंटली कमिंग इन नीड्स। कैप्सूल का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड स्टिकी नेचर टू बैक्टीरिया, स्टिकी नेचर, इट प्रोवाइड स्टिकी नेचर टू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सब स्टिक कर जाता है इजीली हमारे बॉडी के अंदर, और कहां पर भी जितने भी प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, किसके साथ भी वो स्टिक हो जाते हैं, स्टिकी नेचर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिकी नेचर ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू व्हिच लेयर? दैट इज आंसर होगा ग्लाइकोकेलिस या कैप्सूल। कभी-कभी ऑप्शन में डायरेक्ट कैप्सूल दिया होगा, तो कैप्सूल ऑप्शन में दिया होगा तो तुमको चूज करना पड़ेगा कैप्सूल, लेकिन कभी-कभी कैप्सूल नहीं होता है ऑप्शन में। जब ऑप्शन में कैप्सूल नहीं होगा उस टाइम में ऐसे मत बोलना कि साहब नहीं बताया कैप्सूल, तो साहब तो बताया कि कैप्सूल हमारा कैप्सूल नहीं है, लेकिन कैप्सूल इज ए टाइप ऑफ ग्लाइकोकेलिस, तो वहां पर तुमको ग्लाइकोकेलिस यूज करना पड़ेगा। तो ग्लाइकोकेलिस ये सब अगर ओनली ग्लाइकोकेलिस का फंक्शन पूछ दिया, ये दोनों का फंक्शन तुमको लिखना पड़ेगा। लॉस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डेसिकेशन, यहां पर स्टिकी नेचर, इट प्रोवाइड स्टिकी नेचर टू बैक्टीरिया। एंड अनदर इंपॉर्टेंट कैप्सूल का और एक फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी, 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 पैथोजेनिसिटी क्या होता है? द डेवलपमेंट, फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। एक बैक्टीरिया जब डिजीज करेगा, एक बार बैक्टीरिया सेल के अंदर एंट्री करने के बाद, एक प्लांट हो या एनिमल हो या ह्यूमन हो, ह्यूमन के बॉडी के अंदर अगर एक बैक्टीरिया एंट्री कर लिया, एंट्री करने के बाद एक कैप्सूल तो स्टिक करने में हेल्प करेगा, एनिमल बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को स्टिक करने में हेल्प करेगा। स्टिक करने के बाद वो क्या करेगा? डिजीज भी डेवलप करेगा, इसलिए डिजीज होता है। तो दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज और पैथोजेनिसिटी। तो ये सब चीज तुमको ग्लाइकोकेलिस के बारे में याद रखना होगा। तो ग्लाइकोकेलिस कंप्लीट हो गया। ग्लाइकोकेलिस के बाद मिडिल लेयर क्या गया? मिडिल, नेक्स्ट टू ग्लाइकोकेलिस, जस्ट इक्वल टू ग्लाइकोकेलिस इज सेल वॉल। ये जो सेल वॉल से एक क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया? ग्लाइकोकेलिस का केमिकल नहीं पूछेगा, ये केमिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फंक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेल वॉल का दोनों इंपॉर्टेंट है, उसका केमिकल इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले उसका केमिकल हम देखेंगे। दिस सेल वॉल इज मेड ऑफ, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज मेड ऑफ ए स्पेशल केमिकल नोन एज पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टिडोग्लाइकान एक केमिकल में बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकान, आल्सो नोन एज न्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड्स, न्यूरिन और आल्सो कॉल्ड एज म्यूकोपेप्टाइड्स, म्यूकोपेप्टाइड, these are only other names। तो पेप्टिडोग्लाइकान, न्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड व्हिच मेक्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे प्लांट सेल का सेल वॉल के साथ, in case of plant what happens, the cell wall of plant is not made of same chemical but is found in case of bacteria। ये अगर ये सेल वॉल को देखेंगे, प्लांट का सेल वॉल को देखेंगे, outermost covering, in case of plant the cell wall is mainly made of cellulose। ये सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है, यहाँ पर जो पॉलीसैकेराइड टॉप लिखा है एक पॉलीसैकेराइड होता है। तो सेलुलोजिक, मेनली द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है? इन केस ऑफ बैक्टीरिया द सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान एंड दिस पेप्टिडोग्लाइकान केमिकल इज ए नॉन सेलुलोजिक। ये सेलुलोज जैसा नहीं होगा, इसलिए उसको नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड भी लिखा जाता है कभी-कभी, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। तो क्वेश्चन आएगा बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड ऑफ व्हिच टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड? इट इज मेनली मेड ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकान और न्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। लेकिन यहां पर क्या होगा? सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। अगर हम सेल वॉल को देखेंगे, सेल वॉल से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल। हमारा तो ग्लाइकोकेलिस कंप्लीट हो गया। ग्लाइकोकेलिस के बाद हम अभी क्या देखेंगे? सेल वॉल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन तुमको डाउट होता है, वीडियो को पॉज करके बार-बार देखो, वो क्लियर हो जाएगा उस क्वेश्चन। तो
अभी थोड़ा सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल वॉल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है? फर्स्ट तो पूछेगा प्लांट सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ सेलुलोज, बट सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ पेप्टोग्लाइकन नॉट सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। ये जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल और किसी सेल में दिखाई नहीं देगा। In every cell, the cell wall is not present. Cell wall is found in some cells, some organisms, and absent in some organisms. तो पहला क्वेश्चन आएगा सेल वॉल किस किस के पास है, सेल वॉल किस किस के पास नहीं है। तो यहाँ पर तो ये डायग्राम से तो क्लियर हो गया, हमारा बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगा, प्लांट सेल के पास भी सेल वॉल होगा। अगर सेल वॉल देखेंगे, सेल वॉल किस किस के पास है? सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल present, cell wall present in which organism? Cell wall absent, cell wall absent, किस किस के पास सेल वॉल absent होगा? नंबर 1, अगर सेल वॉल का प्रेजेंट के बारे में देखेंगे, फर्स्ट किंगडम मोनेरा में आएगा, किंगडम मोनेरा कंटेन सेल वॉल, किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन सेल वॉल, किंगडम फंजी कंटेन सेल वॉल, किंगडम प्लांटी कंटेन सेल वॉल, प्लांटी, ये चारों किंगडम में तुमको सेल वॉल मिलेगा। लेकिन सेल वॉल एब्सेंट ओनली वन एक्सक्लूसिव किंगडम, दैट इज एनिमालिया। किंगडम एनिमालिया में कभी भी सेल वॉल नहीं मिलेगा, लेकिन ये चारों किंगडम में तुमको सेल वॉल मिलेगा। लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन है, हर किंगडम में तो सेल वॉल होगा, किंगडम मोनेरा में तो सेल वॉल होगा, प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल होगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म, कोई किंगडम का कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शन शो करते हैं। क्या एक्सेप्शन, इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इफ यू कम टू किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में हर ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होगा एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा और आल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है, माइकोप्लाज्मा कंटेन सेल वॉल, ट्रू और फॉल्स? माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। हर ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होगा, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होगा, इतना याद रखना होगा। सिमिलरली अगर प्रोटिस्टा को चलाएंगे, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में भी ऐसा होता है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा शो दिस सेल वॉल, बट कुछ एक्सेप्शन है। प्रोटिस्टा का नाम बताओ, क्या क्या प्रोटिस्टा तुम पढ़े हो, एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो जितना लिखा है उतना बताओ। तो अगर हम प्रोटिस्टा को देखेंगे, प्रोटिस्टा में फर्स्ट आएंगे क्राइजोफाइट्स, डायटम, डिनोप्लाज्मिड, उनके पास सेल वॉल है। सिमिलरली सेकंड आएंगे डिनोप्लाज्मिड, डायटम, नेक्स्ट आएंगे डिनोप्लाज्मिड, डिनोप्लाज्मिड के पास भी सेल वॉल है। उसके बाद आएंगे यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड के पास भी सेल वॉल है। लास्ट आएंगे स्लाइम मोड्स, तो स्लाइम मोड के पास सेल वॉल नहीं, स्लाइम मोड्स। नेक्स्ट आएंगे प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा, तो एक्सेप्शन क्या है, प्रोटिस्टा में किसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं है? नंबर 1 इज स्लाइम मोड, स्लाइम मोड, स्लाइम मोड्स, these are called as saprophytic protista, slime mold. Another, next is protozoan protista, protozoan, protozoan, protozoan protista, protozoan protista। लेकिन ये जो स्लाइम मोड दिखाया प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा, यहाँ पर तो सेल वॉल नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ये जो स्लाइम मोड है, स्लाइम मोड का एक स्पोर है, स्पोर, स्पोर मींस ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे पढ़े हो जूस स्पोर, क्लामाइडोस्पोर, उनका एक स्पोर होता है। देखा गया स्लाइम मोड के पास सेल वॉल नहीं होगा, लेकिन स्पोर इज द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज द स्पोर। The spore of slime mold contain two cellulosic wall for protection, क्योंकि स्पोर को रिप्रोडक्शन करना है, इसलिए स्पोर के पास एक सेलुलोजिक सेल वॉल होगा। तो ये याद रखना होगा, स्लाइम मोल्ड के पास सेल वॉल नहीं, लेकिन इसका स्पोर के पास सेल वॉल है, तो स्पोर कंटेन द सेल वॉल। तो ये एक्सेप्शन चला गया मोनेरा प्रोटिस्टा में। लेकिन अगर फंजी को आएंगे, फंजी कंटेन सेल वॉल, ऑल द फंजी कंटेन सेल वॉल, फंजी का कोई एक्सेप्शन नहीं। सिमिलरली प्लांट, प्लांट का भी कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन प्लांट में दो कैटेगरी है,
प्लांट में अगर देखेंगे कुछ है लोअर प्लांट, कुछ है हायर प्लांट। कुछ प्लांट्स है लोअर प्लांट। लोअर प्लांट का एग्जांपल algae, हायर प्लांट जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये सब आएंगे हायर प्लांट में। लोअर प्लांट में क्या कहेंगे, ओनली algae नहीं, algae, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा ये सब आएंगे लोअर प्लांट में। ये जो लोअर प्लांट algae लिखा, algae और हायर प्लांट ये दोनों का सेल वॉल में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस? इन केस ऑफ हायर प्लांट्स the chemical composition, what are the chemical present in the cell wall? The higher plant chemical is cellulose. Number 1 is cellulose, लिखा है वहां पर cellulose is the highest chemical. cellulose के बाद आएगा हेमीसेलुलोज, नेक्स्ट आएगा पेक्टिन एंड प्रोटीन, ये सब चीज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, these chemicals cellulose, hemicelluloज, pectin, protein, these are coming under higher plant cell wall. हायर प्लांट का सेल वॉल में ये सब चीज मिलेगा। लेकिन लोअर algae, ओनली algae, ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा नहीं, ओनली algae का सेल वॉल अगर देखेंगे वहां पर क्या आएगा, सेलुलोज, नेक्स्ट आएगा galactan, then mana and then minerals, some minerals like calcium carbonate, तो ये सब चीज दिखाई देंगे algae का सेल वॉल। ये एक बार क्वेश्चन आया था नेट में, तो ओनली प्लांट, अगर प्लांट पूछा है तो ये शो करेगा हायर प्लांट, लेकिन अगर लोअर प्लांट algae के बारे में पूछ दिया, ये सब केमिकल तुमको याद रखना पड़ेगा। एंड केमिकल कंपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमको अदर सेल के बारे में भी डिस्कस करना है। हम तो प्लांट खत्म कर लिए, प्लांट का सेल वॉल में क्या क्या है, algae का सेल वॉल में क्या है और फंजी का सेल वॉल में क्या है, algae का क्या है और हायर प्लांट। अभी थोड़ा देखेंगे फंजी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। This cell wall of fungi is made of a special chemical is known as chitin. This special chemical you have to remember, chitin, the fungi, and this chitin is not only found in fungi. The chitin is found in fungi and arthropod, exoskeleton of arthropods, and this chitin is called second most abundant carbohydrate. Second most abundant. Cellulose हो जाएगा first most abundant. This is the most abundant chemical. मोस्ट अबंडेंट मींस मैक्सिमम। कौन सा केमिकल है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिकल और कार्बोहाइड्रेट इज सेलुलोज। बट चाइटिन क्या होता है, चाइटिन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट केमिकल इज द चाइटिन। ये चाइटिन और सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज के अंदर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, लेकिन चाइटिन के पास नाइट्रोजन होता है, तो इसलिए इसको नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। तो चाइटिन इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, और वो नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल का नाम है NAG, N एसिटिल ग्लूकोसामाइन। कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिस सेल वॉल ऑफ फंजी इज मेड ऑफ, ऑप्शन में चाइटिन होगा, चाइटिन नहीं होगा तो ऑप्शन में नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड नहीं होगा तो ऑप्शन में NAG होगा, NAG मींस N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये केमिकल को याद रखना पड़ेगा, N एसिटिल ग्लूकोसामाइन। ये तो फंजी के सेल वॉल के बारे में कंप्लीट हो गया। अगर फंजी के ऊपर जाएंगे प्रोटिस्टा इज मेनली सेलुलोजिक, यहां पर भी सेलुलोजिक सेल वॉल आ जाता है, सेलुलोजिक, मैक्सिमम सेलुलोजिक, जिसके पास है स्लाइमोल्ड और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के पास तो सेल वॉल नहीं, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंडर है उनका सब सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल मींस यहां पर हायर प्लांट में जो है उनके पास भी वही है, तो मिक्सचर ऑफ हायर एंड लोअर प्लांट्स। तो नेक्स्ट इज मोनेरा, किंगडम मोनेरा का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। किंगडम मोनेरा, देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड्स। पेप्टिडोग्लाइकन जो केमिकल है, पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड्स। क्या मिलेगा यहां पर, पेप्टिडोग्लाइकन,
पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टिडोग्लाइकान। ये पेप्टिडोग्लाइकान भी एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है। तो दो ऑर्गेनिज्म के पास नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड मिलेगा सेल वॉल के अंदर। नंबर 1 फंजी के पास होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। सेकंड मोनेरा, किंगडम मोनेरा भी तुमको मिलेगा क्या, पेप्टिडोग्लाइकान। ये पेप्टिडोग्लाइकान दो नाइट्रोजन कंटेनिंग ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड बनाते हैं दो केमिकल बनाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड जो लिखा ओनली नार NAG N-एसिटिल ग्लूकोसामाइन, लेकिन यहाँ पर दो है, क्या क्या, एक है NAG और एक है NAM। NAG मींस N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, another is N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये दोनों केमिकल यहाँ पर होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा फंजी के सेल वॉल में क्या है, ऑप्शन में ओनली तुमको N-एसिटिल ग्लूकोसामाइन दिया होगा या बोथ पूछेगा, तो तुमको चूज करना पड़ेगा N-एसिटिल ग्लूकोसामाइन। लेकिन अगर मोनेरा को पूछ लिया कि मोनेरा में क्या है और बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या है, दोनों मिलेगा, NAM भी मिलेगा। तो दो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन N-एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड N-एसिटिल म्यूरामिक एसिड, तो बोथ होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड आर फाउंड इन हाउ मेनी किंगडम, ओनली 2 किंगडम, दैट इज मोनेरा एंड फंजी। क्लियर? तो ये खत्म हुआ सेल वॉल के बारे में। और सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है, सेल वॉल का मेन फंक्शन, जैसे ग्लाइकोकाइलिस का फंक्शन देखे थे, बहुत सारे फंक्शन था ग्लाइकोकाइलिस का। सेल वॉल का मेन फंक्शन है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो रहेगा, हर प्लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। प्रोटेक्शन के साथ ये क्या करेगा, प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग ऑफ सेल, फ्रॉम ब्रस्टिंग ऑफ सेल। तो सेल को ब्रस्ट करने से प्रिवेंट करेगा। क्लियर? तो ब्रस्टिंग ऑफ सेल इज प्रिवेंटेड बाय सेल वॉल इन केस ऑफ बैक्टीरिया। एंड लास्ट the innermost covering is cell membrane, and the cell membrane is the living covering, and the cell membrane is the only covering where you never find any difference between prokaryotic and eukaryotic cell. कल के क्वेश्चन आ जाता है, which of the following structure having same structurally similar in prokaryotic as well as eukaryotic। यहाँ पर ग्लाइकोकाइलिस है, वहाँ पर ग्लाइकोकाइलिस नहीं था, इनके सब प्लांट सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान था, वहाँ पर सेल वॉल में क्या था, सेलुलोज था। लेकिन सेल मेम्ब्रेन एक ही ऐसा चीज जिसमें डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्लांट सेल में या बैक्टीरियल सेल में। तो प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल आर नॉट डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेल मेम्ब्रेन। और एक पॉइंट हम याद रख लेंगे, द बैक्टीरियल सेल और किंगडम मोनेरा shows similarity with rest of the kingdom with respect to cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन is structurally similar in all kingdom, ये बात याद रखना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन is structurally similar in all the 5 kingdom। तो कोई भी किंगडम तुम उठा के देखो तो हर किंगडम में तुमको एक जैसा सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन इज सेम इन ऑल द किंगडम। तो इसलिए कभी क्वेश्चन आ जाता है, which of the following structure is similar in bacteria, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये तो याद हो गया, एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, कैसे सेल वॉल से क्वेश्चन आया था तुम्हारा नीट में। Which of the following structure is structurally similar? Which of the following is structurally similar in eubacteria and eukarya। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। पहले मुझे बताओ यूबैक्टीरिया, यू यहाँ पर एक यू टर्म जोड़ दिया बैक्टीरिया के साथ,
यू लिखा है, इसको मत समझना कि यूकैरियोटिक। यूबैक्टीरिया मींस बैक्टीरिया में वो आधार से, सब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में वो आधार से यूबैक्टीरिया, लेकिन यूकैरिया है यूकैरियोटिक सेल। तो यूबैक्टीरिया मींस प्रोकैरियोटिक पूछा है, यूकैरिया मींस यूकैरियोटिक सेल। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट के बीच कौन स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा। तो ऑप्शन देखेंगे, नंबर 1 में आएगा सेल वॉल। लेट नंबर 1 इज सेल वॉल, सेकंड इज राइबोसोम, स्ट्रक्चरली सिमिलर कौन है, राइबोसोम। थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नंबर 4। और अगर यहां पर देखेंगे सेल वॉल तो कभी भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम दो तरह का होता है, 70s 80s। तो बैक्टीरिया के पास ओनली 70s होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के पास दोनों होता है। ये ओनली प्रोकैरियोटिक में, ये दोनों आ जाता है यूकैरियोटिक में, तो थोड़ा डिफरेंस आएगा राइबोसोम में। तो सेल मेम्ब्रेन देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन में कभी भी तुमको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ऑल तो नहीं होगा, क्लियर। तो सेल मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म। तो अभी थोड़ा आगे जाएंगे, अभी कवरिंग खत्म हो गया। व्हाट आर द कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये कवरिंग खत्म होने के बाद थोड़ा अंदर जाएंगे, बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएंगे। अगर अंदर देखेंगे, जैसे हमारे पास प्लांट सेल के अंदर ऑलमोस्ट सेंटर में क्या था, एक न्यूक्लियस था, स्फीयर। अगर बैक्टीरिया को देखेंगे, बैक्टीरिया में ऐसा न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा, ऐसा स्फीयर नजर नहीं आएगा, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूइड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जैसे प्लांट का लिखा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स थोड़ा रिकॉल करो, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज द फ्लूइड, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, लेट लाइक दिस, एक डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, इसको क्या बोलेंगे, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड क्यों बोले, दो स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड, शेप इज सर्कुलर डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। लेकिन ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये डीएनए अकेला नहीं होता है, दिस इज नॉट सिंगल, दिस डीएनए इज एसोसिएटेड विद सम आरएनए, कुछ आरएनए भी उसके साथ होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के साथ कुछ राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये तो सबको पता है, नॉन हिस्टोन आर बेसिक प्रोटीन, नॉन हिस्टोन आर नॉट स्ट्रिक्टली बेसिक। तो नॉन हिस्टोन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास हिस्टोन नहीं होता है, हिस्टोन ओनली यूकैरियोटिक के पास होता है। तो यहाँ पर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नाम है पॉलीआमीन। कभी-कभी ये प्रोटीन का नाम भी आ जाता है तुम्हारा एंड्रास में। तो which non-histone protein is found in case of bacteria? The non-histone protein which is found in bacteria, that is polyamine. तो ये क्या करते हैं, ये तीनों डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो दिखा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, कुछ आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये तीनों मिल जाते हैं। ये तीनों मिलके क्या आते हैं, वहां पर ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में आके रह जाते हैं ऐसे। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में तुमको क्या मिलेगा, इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स द डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, आरएनए एंड नॉन-हिस्टोन प्रोटीन, दे गेट मिक्स्ड एंड द फोल्ड दिस डीएनए। ये जो डीएनए यहां पर सर्कुलर दिखाई दे रहा है, यहां पर देख के तुमको थोड़ा डाउट होगा, तो वहां पर तो सर्कुलर दिखाया है, यहां पर ऐसे क्यों दिखाया। एक्चुअली जो सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए जब आरएनए और नॉन-हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिक्स हो जाएगा, ये थोड़ा फोल्ड हो जाएगा, देयर इज फोल्डिंग एंड देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम यहां पर कवर कर रहा है, थोड़ा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सच दैट द अदर प्रोटीन गेट सम स्पेस टू accumulated here, and this type of structure which is present, which is formed by these three, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और इट इज आल्सो नोन एज जेनोफोर और प्रोक्रोमोसोम। न्यूक्लियोइड और जेनोफोर और प्रोक्रोमोसोम,
Prochromosome. Prochromosome are also known as incipient nucleus. Incipient nucleus or false nucleus or fibrillar nucleus. तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ, दिस इज न्यूक्लियर एंड दिस न्यूक्लियर gives a false appearance like nucleus of plant and animal cell. तो यूकैरियोटिक जैसा वो थोड़ा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन दिस इज द फॉल्स स्ट्रक्चर एंड दिस फॉल्स न्यूक्लियस इज फाउंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड इट कंटेन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. तो यहाँ पर तुमको याद रखना होगा, इन केस ऑफ प्लांट्स यू फाइंड ट्रू और एडवांस न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस यहाँ पर डिस्कस किए थे, न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है. लेकिन यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं, देखो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस भी नहीं. तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस नहीं होगा, इसको बोलेंगे फॉल्स न्यूक्लियस. इसलिए उनका नाम हो गया प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, जैसे यूकैरियोटिक, यू प्लस कैरियर को मिला के यूकैरियोटिक हुआ था. प्रोकैरियोटिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रो प्लस कैरियर. प्रो मींस प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव और ओल्ड. कैरियर का मतलब है न्यूक्लियस. जिसके पास प्रिमिटिव और ओल्ड न्यूक्लियस है, उनको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक. इसलिए उनका नाम हो गया प्रोकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल contain this nuclear genophore and this nuclear genophore represent the chromosome of bacteria. इसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इसलिए प्रोक्रोमोसोम बोला जाता है. कभी-कभी क्वेश्चन आता है, बैक्टीरिया contain how many chromosome? The number of chromosome in bacteria. अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ लिया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया इज 1 सिंगल. एक ही क्रोमोसोम होता है, लेकिन ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. हियर ओनली 1 क्रोमोसोम, नॉट पेयर, इट इज अ सिंगल क्रोमोसोम. इसलिए बैक्टीरिया को हैप्लॉइड भी बोला जाता है. वी आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बट बैक्टीरिया आर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया आर हैप्लॉइड, उनके पास दो सेट क्रोमोसोम नहीं होता है, एक ही होता है, पेयर में नहीं होता है, इसलिए उनको हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. लेकिन और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन एडिशन टू दिस न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर किसमें बना है, न्यूक्लियर इज मेड ऑफ 3 थिंग्स, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीआयन. लेकिन ये न्यूक्लियर को छोड़ के अगर हम ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को आ जाए, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में कुछ एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलेगा. यहाँ पर तो एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इसके अंदर भी कुछ फ्रीली तुमको डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए फ्लोट कर रहे होंगे. एंड दिस एक्स्ट्रा डीएनए व्हिच आर फ्लोटिंग, these are called as a plasmid. इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के बाहर है. ये है क्रोमोसोम, दिस न्यूक्लियर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम और प्रोक्रोमोसोम. क्रोमोसोम के बाहर जो है उनको बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के बाहर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. सेल कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड सेल के साथ सर्कुलर. तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड, यस मींस डबल स्ट्रैंडेड, एक बार लिख चुका हूं, डबल स्ट्रैंडेड. तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर. डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर के साथ और एक फीचर आता है, दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग और ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग. एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए. ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग मींस दे कैन फॉर्म अनदर डीएनए like that by process known as replication. Clear? तो this process को replication बोलते हैं और autonomous replication means self replication. तो इसलिए प्लाज्मिड का डेफिनेशन तुमको याद रखना होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के बाद फाउंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया. सो these are the some important features. और कुछ important फीचर बाकी है, हम उसको डिस्कस करेंगे और एक लेक्चर में. This much you have to remember. Okay, so thank you very much.